able to function. Yeah, please So, tell me. Please be a bit louder. Am I audible to you, sir? Yes, yes, you're audible. So I'm saying my understanding of Article 356 is that in case a state government is not able to perform the functions allotted to them, the union government can take direct control. I just wanted to know, I hope everyone is comfortable with our mother tongue, or so that I can explain, or I have to use only English. So is there anyone who is uncomfortable with the English, with the Hindi language? No, sir. Anyone, please speak up so that we can accordingly see the language, and we'll be using a mix of English and Hindi. Okay, so Article 356 of our Constitution of India, of our Constitution of India. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात जाननी है कि हमें ये जानना ही क्यों है. Could you elaborate, sir? सर मतलब रीसेंट न्यूज़ में क्यों है, इसलिए या वैसे ही क्यों जानना है? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज के लिए, टिस में जा रहे हो आप, ठीक है, टिस के लिए सोशल साइंस की बातें पढ़ो, मतलब ये सब बातें क्यों जाननी है हमने? For every role that we plan on playing after we've reached our goal in this, somewhere understanding the country's working is important. So I feel that Okay, good. One good thing you have expressed, that understanding of the country should be there. Yes, fine. Anything apart from that? As a citizen also, I should be aware of how I can be governed and how things might not be under my control but can still happen with me. Just a second, please. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So what does you mean to say that we need to know this because we need to know the functioning of the country? Fine. Apart from that, so to understand policy implementation also, because most of the we have different lists, subject, central subject and concurrent list. So okay, fine. देखो मेरा फंडा थोड़ा डिफरेंट है. My फंडा is simple that जितनी नॉलेज बटोर सकते हो बटोर लो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है. Whatever stream you are going into, when you're reflecting, it is reflecting through your personality. So it becomes very impressive. Your overall personality improves, your chances of getting a job improves, your chances of getting into the selection criteria improves. Fine. I believe in this this particular funda, and I keep reading things which are not related to me at all. Not related to me at all, but still I read them. So I request you, specifically if we talk about constitution and law, so I think you should understand जितनी बारीकी समझ सकते हैं उतना समझना चाहिए, because whatever organization you are working for, you are going to work for, is largely influenced by, I'm being very honest, largely influenced by the laws of the country, laws of the state, or how state functioning is there, how the center functions. So accordingly, we need to improve our, this is for your personality improvement. Whenever you are interacting with someone, so it should reflect, okay, you are a student worth talking to. You're a person worth talking to. ऐसा नहीं हो कि आप एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन में बैठे हो, वो कह रहा है ये, अरे यार, Article 356 has been imposed in one of the states. I don't understand why Andhra Pradesh government, why Andhra Pradesh High Court is doing so, why, what cognizance they're going to talk. तो आप ऐसे छत देख रहे हो कि Article 356 क्या होता है, वो नहीं होना चाहिए, so that you can also contribute to something.
and slowly and steadily your understanding of the law will improve. लॉ की अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी कोर्स में हो, रेगुलेटरी गवर्नेंस में हो, वाटर पॉलिसी डेवलपमेंट में हो, understanding of legal understanding is really very important. Fine. Okay, so we'll move on. So Article 356 of the Constitution of India talks about the state emergency. Article 356 of the Constitution of India talks about the state emergency. What do we mean by state emergency? Anyone? So when there is a disturbance within the state Very good. There is a disturbance within a state and or a constitutional crisis, like okay, constitutional crisis. Fine. Very good. And so political instability. very good, political instability. But question mark, catch point है, मैं बाद में बताऊंगा क्या. सिर्फ political instability is not a ground to impose Article 356. ऐसा मुंबई केस में आया था, पर चलो अभी हम समझेंगे उसको. At times, so it's also implemented when there's a natural disaster or some kind of armed conflict. Armed conflict में तो national emergency आ जाएगी. Okay, sir. Armed conflict तो is a point where national emergency will come in play. All This right. is state. This is within a state, one particular state. We're talking of one state. Maharashtra state, Andhra Pradesh state, Kerala state, Delhi तो खैर ठीक है, अलग ही उसको तो स्टेटहुड का अलग ही सिस्टम है. हरियाणा स्टेट, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, हिमाचल प्रदेश Civil स्टेट. unrest. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Okay. So उन states में emergency लगाना. That is called Article 356. मतलब state में emergency लगना. तो ये basically एक बहुत important provision है जिसका misuse जो है हर मतलब अब तक कहते हैं कि around 125 times इसका misuse हो चुका है from the time जब से ये लेटर, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेके आज तक, हमारा जो जब से लेके आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है लगभग 125 टाइम्स इसका, और उससे भी ज्यादा बार शायद 125-30 बार इसका मिसयूज हुआ है. मतलब कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल कारणों की वजह से उनको हटा दिया गया, जो कि विच इज अ रॉन्ग वे. So the article, अच्छा, one more thing, whatever our constitution is largely influenced by the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 is largely influenced by Government of India Act 1919, Morley-Minto reforms, अगर आपको याद हो तो. The Government of India Act 1919 is influenced from all the previous acts, जो charter acts बनते थे, ठीक है, वो सारी बातें जो चलती थी उन सब से influence हुआ है. Apart from that, मैं आपको ये भी बता दूं that this emergency provisions हमारे Article 352 से लेकर 360 तक, मतलब हमारे जो है कई सारे emergencies के provisions हैं, has been borrowed from Weimar Republic. What is Weimar Republic? What is Weimar? W-E-I-M-E-R. Am I audible? Yes, please go ahead. I don't exactly remember Weimar Republic, but it is something to do during the era of Nazi Germany. If I'm not Era wrong. of? Nazi era of? Germany. Very good, excellent. Can we have a round of applause for her? Yes, true. Thank you. Weimar Republic मतलब Germany, basically that. ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें confusion है, East or West Germany. Talks more about the West Germany, but fine. वहां से ये provision borrow किया गया है. इंडिया के अधिकतर provisions has been borrowed from
some or the other countries. थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं that how Indian Constitution was made, बना कैसे था. मैंने शायद बताया है ये बात इस क्लास में. How Indian Constitution was made, कुछ आइडिया है किसी को कैसे बना है? Okay, the best question would be who has drafted Indian Constitution? The first draft of Indian Constitution was prepared by B.N. Rao. Very good. B.N. Rao या S.N. Rao? मेरे हिसाब से शायद S.N. Rao है. चलो कोई बात नहीं. राव है ना, बस बहुत है. ठीक है. How he made it, I think मैंने बताया है यहाँ पे. I think so there is no point of getting into it. तो B.N. Rao ने पहला ड्राफ्ट बनाया था. Now the question comes, then who is B.R. Ambedkar then? उन्होंने क्या किया था? बोलते तो ये हैं, he has drafted the Constitution of India. Yes, he has. In a way that the first draft, which was actually prepared by S.N. Rao or B.N. Rao, who's I'm missing out the name. He actually took a microscope. There was a drafting committee. He was the chairman of the drafting committee. That drafting committee used this first draft and taken a microscope and analyzed a small comma, a small full stop has been analyzed accordingly. एक वर्ड का मतलब बदल दिया है. मतलब उसमें हर चीज को उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा. तो उन्होंने उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ डिलीट करना था तो वो डिलीट कर दिया, ऐड करना था तो वो ऐड कर दिया, मॉडिफाई करना था तो मॉडिफाई कर दिया. तो हर चीज की तरह उसके साथ में खिलवाड़ पूरी तरह से किया गया. खिलवाड़ कहना गलत होगा वर्ड, मतलब उसके साथ में उसको रिव्यू किया गया, बैठ के समझा गया, सारी अंडरस्टैंडिंग ली गई और उसको उसमें बनाया गया फिर. ठीक है. तो that's how the Constitution of India was made. अब B.N. Rao ने कैसे बनाया ये? उन्होंने अपने सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड के जो हैं वो सबके अपने सामने रख लिए और सब में से जो अच्छे प्रोविजंस थे वो इधर से उठाए, इधर डाल दिए, उधर से उठाए, इधर डाल दिया, उधर से उठाए, इधर डाल दिया. मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ ले लिया. ठीक है ना. तो ये प्रोविजंस, emergency provisions were actually obtained from Weimar Republic. ठीक है. तो ये वहां से आया हुआ है. ये वहां पे ऐसा प्रोविजन था, इसीलिए वहां से यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है. तो that's how our constitution was made. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे आप समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 356 में, उसमें एक आर्टिकल है 356. अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, बाकी सब everything, I'm again telling you, everything is subordinate to this Constitution of India. Okay, let me ask you one thing. What is मतलब date of मतलब CRPC, पता है क्या होता है CRPC? Criminal Proceedings Code. हाँ, Criminal Procedure Code. हाँ, ये कब का बना हुआ है? तो ये तो बहुत पुराना है, मतलब ये तो अंग्रेजों के जमाने का है. वैसे 1973 में इसको दोबारा से रिफ्रेम किया गया था. उससे पहले ये 1860s के आसपास का बना हुआ है. 1858 का शायद था. हाँ, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल हुआ था तो उसके बाद में अंग्रेजों को समझ में आया दैट वी नीड टू फॉर्मुलेट सम लॉज, और अब इनको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, हमें कुछ लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे. दैट्स हाउ इट वाज. एक इंडियन एविडेंस एक्ट है, प्लीज गूगल इट आउट. कब बना था ये इंडियन एविडेंस एक्ट? Uh, 1872. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं दैट 1872 का ये एक्ट आज भी एप्लीकेबल है इंडिया में. अच्छा, इसके बाद में एक है इंडियन पुलिस एक्ट. कब बना था? एनीवन? 1861. हाँ, 1861. मैं आपको बता दूं ये आज भी एप्लीकेबल है इंडिया में. तो एकदम से हमारे
इंडिया पहले भी गवर्न हो रहा था, पहले भी चल रहा था, हर तरह से चल रहा था, तो एकदम से 1947 में क्या हुआ कि भैया अब 1940 से, अब मैं आपको 1947 से 50 के बीच की थोड़ी सी बातें बताता हूँ, तो आपको समझ में बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी कि क्या हुआ। कोर्ट्स 1947 से पहले भी थी, ठीक है। अब आपको बताइए केसेस 1947 से पहले भी चल रहे थे, ठीक है। और उन केसेस का ट्रायल मतलब कि उन केसेस का क्या चल रहा है, जो लॉज बने हुए थे, अब वो एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम से हम सब कुछ क्वैश नहीं कर सकते, एकदम से सब कुछ क्वैश नहीं कर सकते थे। तो हमने जितने भी एक्ट्स बने हुए थे सबके ऊपर हमने कहा कि भैया हमने एक बुक रख दी है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोटा 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 ये हमारी बुक है, मोटी मोटी। हमारा जो देश है वो इन प्रिंसिपल्स पे चलेगा, और यही प्रिंसिपल्स हैं जिन पे कि हमारा देश जो है आगे तरक्की करेगा। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे शेड्यूल, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई, बट फाइन, वो आनी थी। तो मोटा मोटा हमने एक मोटी सी बुक बना दी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमने ये बोल दिया कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। कल को अगर इंडियन पुलिस एक्ट की कोई बात आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगी, तो कौन सी बात मानी जाएगी? प्लीज टेल मी। The Constitution of India. वेरी गुड। तो ये एक आर्टिकल शुरू किया, अगर आप पढ़ोगे आई थिंक 10 से 1 से लेकर 15 के बीच में कहीं लिखा हुआ है, 1 से 12 के बीच में कहीं लिखा हुआ है कि भैया कोई भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन उस मात्रा में नल एंड वॉइड हो जाएगा जिस मात्रा में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। ये आपको शुरू में कहीं मिल जाएगा, या पढ़ोगे तो आर्टिकल मिल जाएगा। 13, उसमें लिखा हुआ है, शायद मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। 13th आर्टिकल सर। 13 में, वेरी गुड वेरी गुड। तो उस मात्रा में उतना आर्टिकल नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब उतना खत्म हो जाएगा वो, उसका उतना पोर्शन, मतलब एक लाइन है बहुत बड़ी, उसमें लाइन में लास्ट के 3 अक्षर जो हैं, लास्ट के 3 अक्षर वो इज वायलेटिंग द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो लास्ट के 3 लाइन, 3 वर्ड्स को हम हटा देंगे। चलो ये हट गया, ये हट गया। सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, एंड उसके ऊपर बाकी सब चीजें, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब उसके नीचे हैं। हाँ, अगर कोई पुराने जो एक्ट्स बने हुए हैं उनके साथ में ये कर दिया, नए जो एक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे ही जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नाउ इट कम्स, नाउ द न्यू थिंग कम्स हियर, आर्टिकल 356। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए, सडनली ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कि मतलब हमको स्टेट में इमरजेंसी लगानी पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो हम क्या करेंगे सडनली एकदम, मतलब स्टेट में वहां पर। अब देखो हमने क्या करा, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है कि क्यों लगना चाहिए। हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। व्हाट ही डिड, ऐसा क्या किया उन्होंने जो सरदार आयरन मैन ऑफ इंडिया बन गया? काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसीलिए उनका बर्थडे कब आता है? अब वो तो नहीं पता सर। 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को आता है, ठीक है। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, आई रिक्वेस्ट यू, इस दिन को किस डे में सेलिब्रेट किया जाता है? उन्होंने क्या काम किया था उसी से रिलेटेड है उनका इस डे में। वो आपकी मैं फैक्चुअल नॉलेज भी थोड़ा ट्राइंग टू इम्प्रूव, वो किस लिए है ये समझ में जाना चाहिए। सर नेशनल यूनिटी डे। वेरी गुड। सबको नेशनल इंटीग्रेशन डे बोलते हैं शायद उसको, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन या यूनिटी, क्योंकि बेसिकली ही कंबाइंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू फॉर्म इंडिया। अब जब उन्होंने बनाया तो 565 रजवाड़ों को, प्रोविंसेस को ये कहना कि तुम इंडिया में आके रहो वाज इटसेल्फ अ चैलेंज। तो क्या किया मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने उनको साम दाम दंड भेद, जैसे भी जिसको जो समझ में आ रहा है वैसे उन्होंने उनको समझाया, मान गए तो अंदर आ गए, चलो ठीक है। समझाने से नहीं समझ रहा तो दाम दिया, साम दाम, पैसा दिया, अंदर आ जाओ, हाँ जी अंदर आ जाओ। पैसा दिया मतलब पर्क्स वगैरह कुछ दिए कि आपके लिए ये फ्री हो जाएगा, आपके लिए वो फ्री हो जाएगा,
प्रीवी पर्स करके अब खूब सारा पैसा दिया जाएगा, साम और दाम हो गए, जो नहीं मारा दंड दिया उसको, मतलब एवरीथिंग ही डिड। तो अब जब साम दाम की जो बात आई, साम वाली बात आई, तो समझाने पे आ गए, तो उनको ये समझाने पे दाम में उन्होंने मतलब निगोशिएशंस में उन्होंने ऐसी भी बातें करी कि भाई मतलब देखो ऐसा है, हम क्या करेंगे, हम एक इंडिया को बनाएंगे और आपके स्टेट में आप अपनी गवर्नमेंट ही चलाओ, आपका ही राज होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है, आप चुन के लेके आओ लोगों को, आप गवर्नर रहोगे, आप इसके यहाँ के राजा रहोगे, राजा आप रहोगे, लेकिन यहाँ पे लोग जो है लोग चुनेंगे, लोग चुनेंगे, इलेक्शन कराएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, एक सरकार बनाएंगे, लेकिन राजा आप ही रहोगे अल्टीमेटली, भरोसा रखो हम पे, राजा आप ही रहोगे। यू नो दैट्स हाउ हिज थॉट वाज ओके। और उस राजा को लगा हाँ भैया राजा तो मैं ही रहूंगा। धीरे धीरे करके पावर्स कर्टेल करते गए वो बाद में टाइटुलर हेड बन गए बस वो, ठीक है। पर क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट बनी तो उनको समझाया गया कि भैया देखो अगर तुमको कोई बाहर से अटैक करे, एकदम से एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, तो हम बचाएंगे तुमको। वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे लोग ही आपस में लड़ जाएं, तो हमें अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी कि नहीं भेजनी पड़ेगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। धीरे धीरे करके ना ऐसे समझाने के बाद में दे केम इनटू द सिस्टम, इंटीग्रेट हो गए। अब इंटीग्रेट होने के बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने ये प्रोविजंस डाले कि भाई अगर स्टेट में ऐसे हालात हो जाएं कि भैया वहां की स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है या इस पूरे एज एन इंटीग्रेटेड इंडिया के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, तो हम वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते। सो दैट्स हाउ दे फ्रेम्ड सच प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 356 टू एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा प्रोविजन बन जाए ताकि लोग जो है कनेक्ट, मतलब लोगों को हम सही राह पे चला सके और एज एन इंटीग्रेटेड इंडिया जो हम अखंड भारत बोलते हैं, जो ये बोलते हैं, वो बना रहे अपना, बेसिकली वो दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो इसी वजह से ऐसे आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया ताकि हम उनकी सुरक्षा भी कर सके, वी कैन प्रोटेक्ट देम, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि अनरेस्ट फैल जाए, लोग मरे अननेसेसरली, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो दैट्स हाउ ये प्रोविजंस डाल के कुछ ऐसे प्रोविजंस इमरजेंसी के भी रखे गए ताकि क्या है, इंडिया एज एन इंटीग्रेटेड भी रहे, लोगों को पावर भी मिले और ऐसा भी ना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए चीज। इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, लेट्स रीड इट। सो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बोरोड दिस प्रोविजन, पाकिस्तान में भी प्रोविजन है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Interestingly, the leaders of our freedom struggle were so opposed to this provision that they forced the British government to suspend it. पर मतलब देखो वक्त कैसे अपना चक्र बदलता है, उनको तो मना कर रहे थे लेकिन हमने अपने प्रोविजंस में डाल दिया। The provisions which we have opposed during our freedom struggle was incorporated in the constitution strangely in the name of democracy, federalism and stability. What is this word? इसकी वजह से डेमोक्रेसी, what is this word democracy? What is this word democracy? Please, जल्दी जल्दी जल्दी। People's rule. एक बड़ा फेमस आदमी था, उस पर मूवीज भी बनी हुई हैं, उसने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, ठीक है। और उसने एक फेमस एड्रेस में ये बात बोली थी, ठीक है। और वो Abraham 3, Lincoln. वेरी गुड, कौन से एड्रेस में बोली थी उसने? So मैं बता दूं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ऐसा पॉइंट है, वर्ल्ड का एक ऐसा पॉइंट I है, think it अगर was वो related नहीं हो, to जब slavery abolish हुई थी उस वेरी time गुड, का एक्सीलेंट। था वो। तो वहां पे एक टाइम ऐसा आया था कि द अब्राहम लिंकन, द प्रिंसिपल्स ऑफ अब्राहम लिंकन वर लूजिंग आउट, पीपल वर नॉट मतलब नॉट स्टैंडिंग अप विद अब्राहम लिंकन। सो एक जगह उसने फेमस खड़े होकर स्पीच दी, उसका नाम है फेमस गेटिसबर्ग एड्रेस। Yes, वहां sir. पे उसने एक 3 लाइन बोल दी जो आज हम सब जो जिसका गुणगान गाते हैं, दैट इज
of the people, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? For the people, Yes, of the sir. people, by the people. Have you read this? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ये डेमोक्रेसी वर्ड वहां से आया. What is federalism? Please tell me. Unless we understand federalism, we will not be able to understand Article 356. So basically, I mean, in the simplest way, I could talk about federalism. Yeah, please go ahead. It's a mixture of a political system where both the parties, whether it's the same, federal is basically used outside. Matlab, it's not the term we use in India. We Very usually good. call it the central government. It's a divide of powers between the central and your regional government. Whether अच्छा, it's the कुछ example state, दो. I'm happy that you have explained it. कुछ example दो. For example, sir, what kind of example? I didn't get your point. मतलब फेडरलिज्म का कोई एग्जांपल दो. कोई दुनिया में कोई ऐसा देश है जो फेडरल वाला बहुत ज्यादा वो हो. यूएसए ही है strictly वेरी गुड. Yeah. यूएसए में क्या होता है वो भी बता दो अब. वहाँ के Yes, smart स्टेट्स people. इंडिपेंडेंटली काफी कुछ फंक्शन करते हैं, मोस्ट Very good. ऑफ मैटर्स को देखते हैं, बट जो कि वो स्ट्रिक्टली फेडरल है तो सारे के सारे स्टेट्स को एक पूरी की पूरी कंट्री की गवर्नमेंट ज्वाइन करके रखती है. अच्छा, वेरी गुड. सो फेडरलिज्म का मैं बता देता अपने मतलब बता देता हूँ. आई थिंक ही हैज एक्सप्लेन्ड इट बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन माय वे. 50 के करीब स्टेट्स हैं यूएसए में, आपको पता ही होंगे. और वहां पर भी एक यूएस गवर्नमेंट है जिसके कि नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन. बेसिकली वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं. इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, So, can I Defense. interrupt? सॉरी. So I just had one doubt. Yeah. What United States, I mean, I don't know if it's a pure federalism example because उनका काफी asymmetric system है. नहीं वो तो- मैं बता रहा हूँ अभी. ऐसे Right. अगर हम प्योर फेडरलिज्म का लें तो कुछ भी नहीं है. यूरोपियन यूनियन हो सकता है, ठीक है, बट अगेन सिंपल बात है. देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर कम्युनिज्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर कैपिटलिज्म. इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर. कुछ ना कुछ रहता ही है. सो अगर मेरे सामने को बेस्ट एग्जांपल आता है तो मैं ये समझता हूँ कि यूएसए का आता है. 3-4 चीजें बस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. बाकी स्टेट्स को जो करना है वो करे, जो करना है वो करे. जैसे एक आपने एक वर्ड सुना होगा, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सुना है वर्ड? Yes, sir. यस सर. वो कहाँ से आया है वर्ड? ये कहाँ से आई? ये वर्डिंग टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है? कॉन्करेंट यूनियन और स्टेट लिस्ट. Union list में हमारे हाँ, तो ये आई कहाँ से आई? ये यहीं से आई है. हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट यूएसए में है. वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा था तो यहाँ पर भी आ गया. हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सर ऑस्ट्रेलिया में भी सर ऐसी है ना, मतलब स्टेट्स जो है अपना खुद का मतलब एक्सटर्नल अफेयर का भी वो लोग दे सकते हैं ऐसा प्रोविजन देखो है. मैंने वही बताया आपको. फेडरलिज्म बेसिकली क्या है कि जितनी पावर स्टेट के पास में ज्यादा होंगी, स्टेट्स जितने भी स्टेट्स के पास में पावर ज्यादा होंगी उतना वो फेडरल होगा. और जितनी सेंटर के पास में पावर ज्यादा होगी उतना वो यूनिटरी होगा. ठीक है. तो इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज लूजली फेडरल. इंडिया इज लूजली फेडरल क्योंकि इंडिया में सेंटर के पास में ज्यादा पावर्स है देन स्टेट्स के. इंडिया में सेंटर के पास में ज्यादा पावर्स है देन स्टेट्स के. जबकि यूएसए में मैं बता रहा था आपको, मैं 3-4 ही है वहां पर. 5वीं को तो बात ही नहीं करते वो. अगर आपको नहीं पता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वहां पर वीजा चाहिए आपको. डू यू नो दैट? Yes, sir. Or even you cannot practice like the same kind of profession in the state. मतलब अगर Okay, आप okay. जाओगे भी तो कई चीजों के लिए आपको वहाँ पे स्टेट लाइसेंस भी लेना होगा. अब अगेन क्या इंडिया में ऐसा है? आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई कैन प्रैक्टिस हियर, आई कैन प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र आल्सो. आई हैव प्रैक्टिस्ड. मैं जब टिस्ट में था तो मैं साथ में प्रैक्टिस भी करता था. आई प्रैक्टिस्ड. एनी हाउ कर सकता हूं मैं. यूएसए में करके दिखाओ. सो इंडिया इज मोर ऑफ यूनिटरी इन नेचर. इंडिया इज लूजली फेडरल. सिंपल बात है. तो जितना स्टेट्स के पास में ज्यादा पावर होगा उतना वो फेडरल होगा. जितना सेंटर के पास में पावर ज्यादा होगा उतना वो यूनिटरी होगा. मतलब एक देश, एक एंड ऑल दैट.
दिस इज फेडरलिज्म. अब मैं आप आई जस्ट want you to apply your brain and tell me आर्टिकल 356 फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है या यूनिटरी को सपोर्ट करता है? यूनियन को, मतलब Union. यूनिट. Unitary, sir. हाँ, फेडरलिज्म को कमजोर करता है वो. क्यों? क्योंकि भैया ये तो जब चाहे आर्टिकल 356 लगाओ, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ, डायरेक्टली उसका कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सेंटर के हाथ में, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, है ना? थैंक यू. आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ वेरी गुड वे. आपको ये सब पहले से तो नहीं आता? कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आपका भी वेस्ट कर रहा हूँ टाइम? ये आपको ऑलरेडी No, sir. आता है? ऐसा तो नहीं है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. डेमोक्रेसी के नाम पे, फेडरलिज्म के नाम पे, स्टेबिलिटी के नाम पर, ठीक है, हमने कुछ ऐसे प्रोविजन डालने पड़े. इट वाज अग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या हुआ था तब 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो बन रहा था, लेकिन वहां पर दो काम हमें साथ में करने थे. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी लॉजिकली. दो काम साथ में करने थे. एक जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको चलाना था, भाई फंक्शनिंग तो करनी थी कि नहीं करनी थी, पहली चीज. और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था. तो ये दोनों काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए गए थे कि तुम्हारे दो काम है, गवर्नमेंट चलाओ, जो ब्रिटिशर्स ने दी हुई है उस गवर्नमेंट को चलाओ भी, क्योंकि हमको तो 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया गया था, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है? When was 150. our constitution 49. adopted? 26 November 49. sir. Very good. That's why this day is called as Constitution Day. very good, Constitution Day. And इसको इनैक्ट कब किया गया था? 26 January 1950. Why? सर उस भाई दिन दो वो महीने के 1929 में फर्स्ट टाइम वो पूर्ण स्वराज के लिए. Swara. हाँ, very good. स्वराज के पूर्ण लिए वो स्वराज किया का था ना. फर्स्ट टाइम आया था. To give relevance to this day, that's why they have adopted this and enacted it this on 1950. एक मजेदार फैक्टर होता तो आपको मैं. Tell me one thing. What is the main function? अगर मैं एक, खैर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन तुमसे प्राइमरली पूछूं कि एक बड़ा फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट करने का. Yes, sir. फाइन, इंटरप्रिटेशन करने से पहले, मतलब ठीक है, तो इंटरप्रेट तो करना ही करना है उसको, उससे पहले एक और भी चीज है, गार्जियन तो ऑफ करना ही है उसको. गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सॉरी, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बाइजन, गार्जियन मतलब गार्जियन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब कोई मुझे गूगल करके ये बताए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब हुआ था? So 1950. 1950 में हुआ था. डेट भी बताओ मेरे को. Article 3. डेट भी बताओ. डेट 1950 में तो हुआ था, लेकिन डेट भी बताओ. Judiciary Act of 1789. Date नहीं नहीं नहीं. नहीं नहीं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? गूगल करके बताओ मेरे को. आई एम आस्किंग यू टू गूगल इट आउट. So 26 January only. नो 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 नो. तुमने गूगल नहीं करा है इसका मतलब यार अभी यार. So Google पे तो ये दिखा रहा है. 26 26, January it's आ रहा है. 28th of January. Let me just see. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैं विकिपीडिया पे पढ़ूंगा, उस पे भी आएगा 28th of January. Okay. Sorry, my mistake. It's established on 26 January 1950. मेरे को याद था कुछ, मैंने शायद गलत पढ़ लिया होगा. इसको नहीं सर, 28 बट समझ लिया. विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि हाँ, it came in हाँ, being और on तो 28th of दिखा है. January 1950 and हाँ, was first established on October 1937. वो तो चलो पहली बात है ना. The Up- proceedings and inauguration took place on 20th. हाँ हाँ हाँ, fine fine. So thank you. So now you understood that why it was established, मतलब जो मेन जो इसका बना वो 26 जनवरी को ही क्यों बना? समझ में आई आपको बात? आपको क्यों? क्योंकि
इट इज द गार्जियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ही नहीं तो उसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों होगी? समझ में आ रही है आपको बात मेरी? Yes, sir. है ना? सो इट्स अ जीके फैक्ट जो बीच में मैंने कर दिया। जैसे ऐसे हम जीके फैक्ट याद रखते हैं ना, तो याद रहती हैं बातें ना। मतलब मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया आपको, थोड़ा सा आपको याद रहे कि भैया ऐसे रट्टा मारोगे कि भैया 28 जनवरी को आया था या 26 जनवरी को आया था, तो आपको शायद याद ना रहे, फिर आप मिस भी कर जाओ उसको। लेकिन ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक और पीछे की कहानी पता चल जाए ना, तो कहानी हमें बड़ी जल्दी समझ में आती है। और मैं कहानियां बनाने में बहुत नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं कहानियां पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। Okay, so where were we? What we were talking about? Oh, yes. So constituent assembly के दो काम थे। पहला काम क्या था? पहला काम टू रन द गवर्नमेंट जो है। दूसरा काम गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करना, ड्राफ्ट करना, जो भी है। 3 साल, हमें लगभग 3 साल लगे अप्रोक्सीमेटली, 2.5 साल लगे, जितना भी टाइम लगा आप देखो, लगा उतना टाइम, उतने टाइम तक दो काम करने थे पैरेलली। तो वो दोनों काम दिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, अब सुनो, अब इसको पढ़ते हैं लाइन को। इट वाज अग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर ये बात को बोला गया दैट द गवर्नर कुड यूज दिस इमरजेंसी पावर। अभी गवर्नर कौन है? कौन है ये गवर्नर? व्हाट इज द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? हु इज द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? गवर्नर कौन होता है? प्लीज टेल मी। ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप लोग बोल रहे हो या फिर मेरे को बस हाय हेलो बोल दो कि मेरे को पता चल जाएगी आप लोग बोल रहे हो। Yes, आवाज आ रही। आवाज आ रही है? तो गवर्नर क्या होता है बताओ फिर। सर गवर्नर जस्ट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी Okay. स्टेट में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम कुछ और बात समझते हैं, फिर हम गवर्नर पे आएंगे। थोड़ा याद भी रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज जुडिशरी? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? पर मैं बेसिक लैंग्वेज में सिर्फ पता हूँ, लेमन लैंग्वेज में बता हाँ, सकता अरे लेमन में बताओ यार, मैं खुद आई एम फैन ऑफ लेमन लैंग्वेज। हूँ। लेजिस्लेचर जो होता है जो लॉ बनाएगा, वेरी गुड जुडिशरी जो होगा जो चेक करेगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है नहीं है तो वर्ड वेरी चेंज गुड, होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एग्जीक्यूटिव जो है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराएगा। फाइन, वेरी गुड, लॉ को इम्प्लीमेंट कराएगा। तो हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया बेसिकली, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो? प्रेसिडेंट ना, प्रेसिडेंट। वेरी गुड, क्या बोला, दोबारा बोलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जीक्यूटिव, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बेचारे पे फाउंडेशन होती है, ठीक है, दैट ही हैज टू वर्क। काम नाम पे उसके होगा, प्रेसिडेंट ने ये बोला है, प्रेसिडेंट ने ये बोला है, प्रेसिडेंट ने ये बोला है, इसलिए हमें ऐसा करना है, इसलिए हमें ऐसा करना है, इसलिए हमें ऐसा करना है। ठीक है, कोई एक्ट भी बनता है अगर, तो प्रेसिडेंट ने ये लिख के साइन नहीं करेगा जब तक वो एक्ट लागू ही नहीं होगा। पर वो एक्ट बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, जो भी जितने भी होते हैं आपके मिनिस्टर्स, आपको पता ही है, इतने लंबे लिस्ट है। उनकी एडवाइस पे, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लीगल फाउंडेशन भी बनती है उनपे। सो इसीलिए इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट इज लाइक नो वन नोज। मैं अगर पूछूं आपसे रामनाथ कोविंद, आपको तो खैर पता होगा, बट बहुत लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही नहीं पता। उनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नरेंद्र मोदी।
दैट्स वाई इंडिया में पावर जो है ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, ठीक है, लेकिन नाम सारा लगेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. In the same way, the same position is of governor in the state. The same position. He is the chief executive of that state. Basically, उनके नाम पे ही सारी चीजें होनी है और वो इनका नुमाइंदा होगा प्रेसिडेंट का. इसकी रिपोर्टिंग होती है ना, रिपोर्टिंग की भी मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, तो इनका रिपोर्टिंग सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इंडिया को होती है. ठीक है, ये गवर्नर को पावर्स दी गई कि आप इमरजेंसी पावर यूज कर सकते हो. तो शुरू में कुछ गवर्नर्स तो उन्हीं महाराजाओं के, बेसिकली जो वहां के जो प्रोविंस के जो राजा थे उन्हीं को गवर्नर बना दिया था कुछ जगहों पे. तो ठीक है, जैसे कि देख लेना, पढ़ लेना, राजा हरि सिंह को भी बनाया था कहीं का गवर्नर, तो याद नहीं आ रहा है एमपी का बनाया था, कहाँ का बनाया था, आई डोंट नो, उनका कुछ बनाया था. तो क्या हुआ, उनको भी लगा अरे वाह हमारे पास इमरजेंसी पावर आ गई, हम जब चाहें इसमें इमरजेंसी पावर लगा सकते हैं. वो भी खुश, ठीक है, हम भी खुश कि हाँ भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करेगा ये. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये सारे काम किए, मतलब ये प्रोविजन जो इमरजेंसी पावर का गवर्नर के हाथ में थमा दिया. बाय दिस टाइम द गवर्नर ऑफ स्टेट वाज सपोज्ड टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट रादर देन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर. ठीक है, सपोज्ड, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ इसका. बाद में तो क्या हुआ, बट वो नॉमिनेट होके आते थे. आज भी नॉमिनेशन होती है इनकी, आज भी दूसरे स्टेट पे जाते हैं. आफ्टर सेवरल रिवीजन प्रोविजन became 278, now article 356. Article 356 has been used and misused more than 125 times. जबकि बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये तो ऐसा वर्ड है शायद ही कभी यूज होगा, हमने डाल दिया बट यूज नहीं होगा कभी भी. Both on Article 356 and Governor, experience has proven Ambedkar wrong. In almost all cases, it was used for the political considerations rather than any genuine breakdown of the constitutional machinery in the state. वाकई में कभी कोई जरूरत पड़ी हो तब इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. ज्यादातर क्या, मोस्टली इसका इस्तेमाल उस रीजन से नहीं हुआ है. इनका इस्तेमाल हुआ किस लिए है? Can you just give me 1 minute so that I can attend a call? Yes, sorry. So there was one instance where actually the provision was or can be or was supposed to be used, but actually में इसको यूज नहीं किया गया. जब एक्चुअल में देयर वाज अ इमरजेंसी की भी है, वहां पे इमरजेंसी पावर को इम्पोज किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया था. It was on 6 December 1992. What happened on 6 December 1992? So Babri Masjid demolition. वेरी गुड. बाबरी मस्जिद डिमोलिशन किया गया था. उससे जस्ट पहले ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये किया जाना चाहिए था? So nationwide campaign था. Very good. Yatra was planned to Ayodhya. What was that यात्रा? रथ यात्रा. Yes sir. Where was That's right. सोमनाथ से चल के पूरे इंडिया में घूम घाम के उनको अयोध्या पहुंचना था. ठीक है, अब वो बहुत सारे स्टेट्स वगैरह का बहुत अलग इश्यूज है, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पॉलिटिकल इश्यूज. पर ये एंटिसिपेटेड था
कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये एंटिसिपेटेड था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कार सेवक ऐसा कुछ कर सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव को बोला गया, नहीं बोला गया, हजार तरह की बातें हैं, पर एक्चुअल में जब यूज किया जाना था और वो बहुत सही भी होता, लेकिन जब यूज ही नहीं किया गया। बेसिकली ये अधिकतर यूज किया जाता है कि भैया हमारा काम जो है बन जाए। भाई बेसिकली यहाँ पे लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता माइनॉरिटीज था उस वक्त, पर इट वाज नॉट यूज्ड। अगेन उसके भी पॉलिटिकल रीजंस हैं। इज इट ओके? सर मुझे एक डाउट है या प्लीज गो अहेड। सर, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है सर, उसके लिए सर प्रेसिडेंट खुद ये डिसाइड करते हैं या उनके पास कोई जाता है बताने बोलने के लिए कि मैं हमें बताता हूँ, emergency उसका ही बताता हूँ। चलो तुमने ये इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कैसे होता है, टेक्निकलिटी में देखते हैं हम इसको। टेक्निकलिटी में देखते हैं इसको। गवर्नर ऑफ द स्टेट सेंड्स अ रिपोर्ट। पहली चीज, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, कहे कि भैया हमारे स्टेट में कुछ सही नहीं चल रहा है और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देना चाहिए। और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद में सैटिस्फाई हो जाता है, यस ये लगना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो गया? गवर्नर विल सेंड अ रिपोर्ट, गवर्नर विल सेंड अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सैटिस्फाइड दैट मतलब दैट अ प्रेसिडेंट रूल हैज टू बी इंपोज्ड इन द स्टेट। पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी कंटेंशियस चीज है ये, बहुत ही कंटेंशियस चीज है। ओके, ये आ भी गई, सामने ही आई हुई है दिस वर्ड अदरवाइज। वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदरवाइज फील करता है और लगता है कि भैया यहाँ पे कुछ मतलब कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ है या क्या है, ये अदरवाइज में सारी चीजें आ गई है। अदरवाइज इज अ ब्रॉड वर्ड, उसमें सब कुछ लिख दिया। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल्ट अदरवाइज कि भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो वहां लग जाएगा। तो बेसिकली इट इज ऑन द विम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो कब चाहे उसको लगा दे। तीसरी चीज, जब ऐसा लग रहा है कि स्टेट जो है सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, पहली बात, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। जब स्टेट को ये लग रहा है, जब स्टेट जो है सेंटर की बात नहीं मान रहा है और स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या उनके प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तीन तरीके क्लियर हो गए। कौन कौन से हैं? पहला Yes, sir. So when the governor of the state feels विल सेंड द that it रिपोर्ट, should be ठीक है। imposed, right. सेकेंडली, If the state is not following the center's direction वेरी or गुड, is going against them. वेरी in any गुड। way. थर्डली अदरवाइज। अब अदरवाइज एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। अदरवाइज में तो कुछ भी मुझे लग रहा है कि भैया महाराष्ट्र में ये हो सकता है, अदरवाइज। दिस अदरवाइज वर्ड, द इश्यू ऑफ द वर्ड अदरवाइज, ठीक है, इस पे बहुत बड़ा इशू है। पर नहीं, ऑब्वियसली इशू है क्योंकि ये विम्स एंड फैंसीज पे हो गया फिर तो। अब तो वी कामत क्रिटिसाइज द वर्ड अदरवाइज, सेड ओनली गॉड नोज व्हाट अदरवाइज मींस। As the governor has been made a nominee of the center by this time, he asked why the president could not have a confidence in his own nominees. Otherwise can include anything, including a presidential dream of breakdown of constitutional machinery in the state. उसको अगर लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, सपने में आ गया उसको, तो तब भी कर सकता है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ी सी टेक्निकलिटी में और जाए, Yes, sir. इंटरेस्ट आएगा आपको। सपोजिटली आज क्या तारीख है? 21 मई। 21 मई को एक गवर्नर की रिपोर्ट आती है मेरे पास में। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे पास एक गवर्नर की रिपोर्ट आई
21 मई को, और मेरे को उसको पढ़ को लगा हाँ यहाँ पे तो आर्टिकल 356 इंपोज होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, तो उस स्टेट में मैंने प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। तो अब होगा क्या? होगा ये 21 मई 2021 से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, 21 मई 2021 से लेके नेक्स्ट 2 मंथ मतलब 21 जून 21 जुलाई 2021 तक मेरा प्रेसिडेंट रूल जो मैंने जो लगाया है प्रेसिडेंट रूल, वो इम्प्लीमेंटेड रहेगा 2 महीने तक। अब क्या है, विद इन दीज 2 मंथ्स, इन 2 महीने के अंदर द पार्लियामेंट मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट वाली पार्लियामेंट है, जो एमपीज हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठते हैं, संसद है जो, द पार्लियामेंट हैज टू पास this resolution with simple majority. Again, I'm repeating the word, with simple majority. अगर उन्होंने विद इन 2 मंथ्स ये पास कर दिया रेजोल्यूशन, तो ये इमरजेंसी जो है विल एक्सटेंड टू 6 मंथ्स इन टोटल। मतलब 21 मई 2021 से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 21 नवंबर 2021 तक। समझ में आ गई बात? 6 महीने के लिए ये इंप्लीमेंटेड रहेगा। अब अगर इसके बाद भी मुझे इसको कंटिन्यू करना है, इसके बाद भी, देन अगेन बिफोर एक्सपायरिंग दिस डेट 21 नवंबर 2021, उससे पहले मेरे को पार्लियामेंट से दोबारा पास कराना पड़ेगा, इसको दोबारा पास कराना पड़ेगा। और ऐसा मैं मैक्सिमम 3 साल तक कर सकता हूं, मैक्सिमम 3 साल तक। समझ में आ गई बात? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. समझ में आ गई बात अच्छे से? ओरिजिनल sir. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था, अभी चेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको चेंजेस भी बताऊंगा अभी, ठीक है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था, मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकते हैं। जिस दिन उसने बोला उस दिन से इमरजेंसी इंपोज हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। विद इन दिस 2 मंथ्स द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट। द पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट वाली पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट। अप्रूव करने के बाद में फिर वो 6 महीने तक के लिए वैलिड हो जाएगी। 21 नवंबर 2021 तक ये वैलिड हो जाएगी। वैलिड हो जाने के बाद में फिर ये वैलिड हो जाने के बाद में फिर अगर इसको 6 महीने के बाद भी आगे करना है तो उससे पहले हमको दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी इसको विद व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी? Simple majority. हाँ, सिंपल Sir, could मेजॉरिटी। you explain this term, simple majority? ओके, थैंक यू। 100 लोग हैं, 51 लोगों ने बोल दिया हाँ करना चाहिए, तो सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है? और उसमें भी एक कंडीशन है, एटलीस्ट 75% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। भाई ऐसे नहीं कि आए 51 लोग, मतलब आए, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उस केस में अगर तो हमारी मेजोरिटी क्या होगी, 51 50 ही लोग आए तो हमारी मेजोरिटी 26 हो जाएगी। 75% कम से कम प्रेजेंट होनी चाहिए और वो वोट भी करना चाहिए उनको। दैट इज सिंपल स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होती है फिर? स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 होता है। अच्छा, समझ में आ गया? अच्छा, अगर Special बाकी majority. लोगों ने मना कर दिया तो हाँ फिर जी, तो मैं समझा will नहीं, this बाकी be लोग कौन passed से? or not? अगर कौन से? सबने वोट किया and you're saying around 20 people have voted a yes for it and the others 20? have refused. Yes, sir. अदर मतलब 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 20 ने बोला हाँ, 80 ने बोला ना, Yes, sir. तो ना हो गया। All right. So, okay. ठीक है. तो बड़ी सिंपल बात है। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। अगर ये नेशनल इमरजेंसी होती, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, so the parliament has to pass it through a special majority. स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 होना चाहिए, एटलीस्ट 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? स्पेशल मेजोरिटी। Am I able to explain myself?
So special majority is crucial for a national emergency, right? Yes, it's must. सिंपल मेजॉरिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हो, नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के बीच में अंतर समझ में आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो आपको मजा आएगा बात जानने में। सर मुझे तो बस हुआ ये कि सॉरी पूछना था सर, बस हाँ जी। जस्ट एक पूछना चाहता हूँ सर, ये फोर्थ लाइन जो आपने लिखा है ना सर, जो उसका जी, हम जी। थोड़ा उसका बता सकते हैं थोड़ा, मतलब कोर्ट भी मतलब ऑर्डर दे सकता है इमरजेंसी के लिए? नहीं 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 क्या मतलब हो रहा है उसका? नहीं नहीं, मतलब कोर्ट नहीं, प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करेगा इस चीज के लिए। वही कल अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ओके प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। लेट्स कम इनटू इट, लेट्स कमिंग बैक टू इट। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर से। देखो हर चीज के पीछे कहानी होती है, कहानी समझेंगे, वो कहानी पढ़ के मजा आएगा अपने को, ठीक है। वो जो आंध्र प्रदेश वाली बात लिखी है वो क्यों लिखी है, कहानी पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा अभी कि जब एक्चुअल में ये प्रोविजन बना था आर्टिकल 356, तब क्या था। तब ये था भैया सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग चाहिए, ठीक है। और अगर आप ज्यादा लगा सकते हो तो 3 साल के लिए लगा सकते हो, और मतलब हर 6 महीने बाद पे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो भैया धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, आप बिलीव नहीं करेंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1970s 59 such governments were placed under president rule. You got this point? हर आदमी इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई तो रोक होनी चाहिए। तब एक रोक आई विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था? इंदिरा गांधी के बाद हुआ था ये, हाँ, 75 के बाद। What is called, which constitution is called a mini constitution of India? Which amendment is called the mini constitution of India? 42nd। Very good, very good। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो 42nd हो ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है 42nd। आज भी इंपैक्ट करता है हमको वो, आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो आज भी इंपैक्ट करते हैं अपने को। 42nd अमेंडमेंट, तो जो 42nd अमेंडमेंट में जो भी बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, उसको रिकवर करने के लिए 44th अमेंडमेंट हुआ था, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था। चलो वो सब छोड़ो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। तो 44th अमेंडमेंट में ये बात लिखी गई थी कि भैया आप तो ऐसे फिल्म ऑफ फैंसी तक 3-3 साल तक गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, यहाँ पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूल के अंडर ही रहेगा यहाँ पर तो सब कुछ। तो उन्होंने बोला अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, अब से हम ये लिख देते हैं यहाँ पर कि क्या लिख देते हैं, मैं भूल गया। हाँ, कि आपने एक बार उसको 6 महीने के लिए पास कर दिया, दोबारा उसको 6 महीने के लिए पास कर दिया, तो 1 साल हो गया। 1 साल तक तो आप सिंपल मेजॉरिटी से करके उसको कर सकते हो। 1 साल के बाद में आप सिर्फ आप सिर्फ 2 ही कंडीशंस में ऐसा कर सकते हो कि उसको रिन्यू कर दो, मतलब उसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन दिस कंडीशन इज, पहली कंडीशन क्या हो गई कि इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, देन यू कैन डू इट। पहली चीज। दूसरी चीज, जब स्टेट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि भैया यहाँ तो इलेक्शन हो नहीं सकते हैं, यहाँ पे भाई जब आपने इमरजेंसी हटाओगे तो फिर इलेक्शन तो होंगे दोबारा से या नहीं होंगे? तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते जब ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि इलेक्शन हो पाए यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इमरजेंसी को हटाएंगे, मतलब उस इमरजेंसी को कंटिन्यू करेंगे जब ये 2 चीजें होंगी तभी करेंगे। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी रोक लग गई। समझ रहे हो आप बात समझ रहे हो? पहले तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, अब 2 कंडीशंस लग गई हैं कि अब थोड़ा सा आदमी अब जब ही लग पाएगी जब इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी हो।
पहली चीज। दूसरी बात, ये इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि नहीं भैया यहाँ पे इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, हम कैसे करेंगे इस चीज को, तभी हम उसको 1 साल के आगे 3 साल तक और मैक्सिमम तब भी 3 साल तक ही कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, इनरोड आ गया, आया ना? Yes, sir. सर आप सेकंड कंडीशन वापस बता सकते हैं 1 मिनट? देखो मुझे बात बताओ, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में क्या होगा? टेल मी। डिप्लॉय कर दिया। सेंटर का रूल होगा सर स्टेट में। So Army governor rule. will be the head of the state. अरे रूल लगने के बाद में क्या होगा भैया? सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा? इलेक्शन तो होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा सुनो, चलो गुड, यू आर दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस 2 मोर टर्म्स नाउ, हम समझते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ? स्टेट में भी होती है, ठीक है। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग 2 वर्ड्स टू यू। वन इज सस्पेंशन, अदर इज डिसॉल्व। अब इनके बीच का डिफरेंस समझो। थैंक यू रक्षिता, राइट? यस सर। You ask this question so we can explain this also. पहले क्या होता था कि भैया अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो जो हमारी असेंबली होती थी स्टेट की, वो डिसॉल्व हो जाती थी, खत्म, डिसॉल्व ही हो गई, खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई जिस दिन प्रेसिडेंट रूल लगा। अब जिस दिन वो हटेगा तो भैया डिसॉल्व हो गई, मतलब कि सारे मिनिस्टर्स जो हैं, सारे एमएलएज, अब वो खत्म हो गया। अब उनका मतलब नहीं है। अब दोबारा फ्रेश इलेक्शन होंगे, नए नुमाइंदे चुन के आएंगे, वो अपनी सरकार बनाएंगे। डिसॉल्व हो गई, समझ में आ गया डिसॉल्व का मतलब? दूसरा वर्ड है सस्पेंशन। पहले क्या हो रहा था कि बस जिस दिन से प्रेसिडेंट रूल होगा उस दिन से डिसॉल्व हो गई। बाद में एक एसआर बोम्मई, बड़ा फेमस केस हुआ था एसआर बोम्मई, उसके अंदर बहुत सारी बातें बोली गई थी। उसमें से एक बात ये है कि भैया ये जो है ना, अब से प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में डिसॉल्व नहीं होगी असेंबली, सस्पेंड होगी। सस्पेंड मतलब स्थगित कर दी गई है। 2 महीने तक तुम काम नहीं करो, मतलब आप अगले 2 महीने तक आप चुपचाप घर में बैठो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल वे, लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ कि भैया तुम उन्हें घर में रहोगे, ठीक है, तुमको पैसे दे देंगे हम, ठीक है, हाँ तुम ही हो पोजीशन पे, पावर कुर्सी तुम्हारे पास में ही है, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन काम हम करेंगे। तो जो समझ में आ गया हाउस अरेस्ट सस्पेंशन? पे रखते हैं पॉलिटिशियंस को। सॉरी? तो जो हाउस अरेस्ट पे रखते हैं। नहीं, वो मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। ऐसे हाउस अरेस्ट में नहीं रखते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भैया तुम्हारी हमने मेंबरशिप ऑफ एमएलए की जो मेंबरशिप है वो खत्म नहीं करी है, क्रॉस नहीं करा है। कि मतलब अगर मैं लिखूंगा कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक आप एमएलए के मेंबर थे, मतलब यू वर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए थे आप, तो मतलब इसमें क्या है कि सस्पेंशन में क्या है कि बस सस्पेंड कर दिया गया है, डिसॉल्व नहीं, आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं की गई है, आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड मतलब ये है कुछ टाइम के लिए तुम्हारा काम हम देखेंगे, आप नहीं करोगे अपना काम, ठीक है, घर में चुपचाप बैठो, टीवी देखो, हॉटस्टार नेटफ्लिक्स देखो, हम करेंगे तुम्हारा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। डिसॉल्व मतलब कैंसल, घर बैठ भाई, ठीक है, सरकार से कोई भत्ता मांगने मत आ जाइए, तू नहीं, भत्ता मिलता है, आई एम जस्ट सेइंग इट, बट हाँ मतलब बेसिकली ये तुम्हारा टेन्योर ही खत्म कर दिया हमने। अगर मैंने सपोजिटली डिसॉल्व किया है, मतलब डिसॉल्व हुई है असेंबली, तो एमएलए कोई जो सपोज करो
1 मई 2021 को कोई एमएलए बना और 21 मई को मैंने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, और इम्पोज करने में भी उसमें डिसॉल्व हो गई, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो इसका मतलब 1 मई, उसका जब टेन्योर लिखा जाएगा हिस्ट्री की बुक्स में या जहां पर भी, तो उसका टेन्योर आएगा 1 मई 2021 से लेके 21 मई 2021 तक ये महाशय जी हमारे एमएलए थे, जब डिसॉल्व हो जाएगी। सस्पेंड में क्या होगी? सस्पेंड में ये होगा कि आपकी मेंबरशिप विल कंटिन्यू, ठीक है, बट आप काम नहीं करोगे 21 तारीख के बाद में। इज दैट मतलब समझ में आई कि नहीं आई बात? सस्पेंशन और डिसॉल्व के बीच में अंतर? Yes, sir. ठीक है। अब रक्षिता प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर क्वेश्चन, आई अगेन लॉस्ट इट। क्या क्वेश्चन था आपका? कि second condition I wanted you to. हाँ अंडरस्टैंड। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, हमने क्या बताया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब सेटिस्फाई हो इस बात से, मतलब जब सेटिस्फाइड हो कि हाँ भैया यहाँ तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट रूल लगते ही डिसॉल्व हो जाती थी असेंबली। लेकिन एक केस हुआ एसआर बोम्मई 1994 में, एसआर बोम्मई केस हुआ, बड़ा फेमस केस हुआ। उसमें यह बात बोला गया कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब सस्पेंशन ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली होगा, ना कि डिसॉल्व नहीं होगी असेंबली, सस्पेंशन होगा। अब सपोजिटली प्रेसिडेंट ने तो इम्पोज कर दिया रूल, ठीक है, अब उसको मतलब अप्रूव होने के लिए कहां जाना पड़ेगा उसको? प्रेसिडेंट ने तो इम्पोज कर दिया, उसके बाद अप्रूव होने के लिए कहां जाना पड़ेगा उसको? मैंने बताया था आपको 2 महीने तक के अंदर में क्या करना होता है? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। अगर उस पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं आता तो ये सिर्फ सस्पेंशन कहलाएगा, मतलब फिर आप दोबारा इलेक्शंस नहीं कराएंगे, वही लोग वापस आ जाएंगे। सपोज करो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आया तो सस्पेंशन नहीं होगा, सॉरी डिसॉल्व नहीं होगी, सस्पेंशन होगा। 2 महीने के लिए सस्पेंडेड थे, अब वापस से वो काम पे आ गए हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल आ जाता है तभी वो डिसॉल्व होगा। समझ में आ गई बात? Is that understood or not? So I have a question. Yeah, please go ahead. I mean, how supportive would the parliament be towards the presidential rule? Obviously they will be. It is just a matter of fact कि भैया मतलब वो ठीक है, प्रेसिडेंट तो It's उन्हीं more के of a कहाँ इशारों पे काम formality, कर रहा है, okay. हैं? Right. सॉरी, So मतलब it's basically a formality. बहुत सारी होती है, एक और मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट खुद तो ना करेगा। प्रेसिडेंट इज लाइक कि भैया मतलब उसके कंधे पर रख के, बेचारे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, वो आगे खड़ा कर दिया, प्रेसिडेंट रूल आ गया, प्रेसिडेंट रूल आ गया, हमने थोड़ा ना कुछ करा है, प्रेसिडेंट साहब ने करा है, जबकि सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ने कुछ करा नहीं है। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जब किसी में प्रेसिडेंट पे इम्पोज करना होता है ना प्रेसिडेंट रूल, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछता है करें कि ना करें। अब डिपेंड करता है वहां की गवर्नमेंट, अगर रूलिंग गवर्नमेंट जो यूनियन की होती है वही वहां पर है, या उनका मतलब वही वहां पर है, तो वो नहीं करेगा। दूसरा होता तो वो कर देगा। तो इट इज जस्ट मैं बोल रहा हूं, इसीलिए तो मिसयूज किया गया है इसका, इतनी बार इसका मिसयूज किया गया है। So, अब एक चीज, या प्लीज। so recently I read an article, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, but उसमें था कि एक petition है in the Supreme Court ये president rule लगाने का in West Bengal. So that's through the Supreme Court. So what I want to understand is कि वो कैसे process होएगा through the Supreme Court. अच्छा, अब वो अभी एक चीज आएगी, वो जो अभी एक लड़के का भी क्वेश्चन था, अब दोनों को मैं साथ में लेता हूँ। 1992 में क्या हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को, कि भैया वहां पर हो गई, वहां पर राइट्स फाइट्स हो गए, तुम्हें पता ये सब क्या हुआ। तो 15 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तीनों की गवर्नमेंट्स को आर्टिकल 356 इंपोज हो गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया वहां पे। मजे की बात देखो कि मतलब इन तीनों में लग गया, ठीक है।
तो इसके अगेंस्ट एक केस किया गया, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था शायद, जो भी था, केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, तब उन्होंने कुछ बोला, वो जानने वाली बात है। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, इट्स अ लैंडमार्क केस। मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस जो होते हैं ना, लैंडमार्क केसेस होते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो ना बहुत सारे लैंडमार्क केसेस होते हैं, तो उसमें से एक केस था एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था शायद केस। तो उसमें कई सारी बातें आई। पहली बात कि जब भी ये प्रेसिडेंट रूल लगेगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब समझते हो? Anyone who understands the judicial review word? Sir, can you please repeat what you just said? I didn't Judicial understand. review No, before that, sir. मतलब मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? So आपका क्वेश्चन क्या था बेसिकली? जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ, what do you mean by judicial review? जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन जो होते हैं, वो इसमें एक बार देखे जाते हैं, मतलब दे आर बेसिकली हेल्ड अकाउंटेबल। एक रिव्यू मीटिंग होता है, देख उसमें चेक करते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी मतलब कोई भी उसको जो फंडामेंटल राइट्स है या जो भी है उनको वाइड तो नहीं कर रहा है, वो चेक करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारा एक शेड्यूल है, शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। शेड्यूल 9 के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बात बोल दी कि आर्टिकल 356 में अगर जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि क्यों लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, उसके लिए कोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं क्यों लगाया गया है, उसका रीजन बताओ। मैं दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ, तो जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब हो गया कि कोर्ट में जाके ये पूछा जा सकता है कि आपने ये क्यों लगाया, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है कि नहीं भैया, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना है और आज से बंद हो जाए, आज से खत्म हो जाए, आज से हमारा प्रेसिडेंट रूल जो लगा हुआ है स्टेट के अंदर बंद, खत्म कर दो उसको। जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ गई बात? अभी एक लड़की का क्वेश्चन था, वो क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया, वो उसका आंसर है ये कि कोर्ट में कैसे चलेगा, क्योंकि एसआर बोम्मई केस में ये डिसीजन आ गया था जुडिशियल रिव्यू का। उन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो, हम भी देखेंगे उसको सब, हम मतलब कोर्ट भी देखेगा उस चीज को, और कोर्ट बताएगा उसको कि भैया क्यों लगाया ये, तुम बताओ सही है कि नहीं है ये। जुडिशियल रिव्यू, ये बात आई थी कि भैया जुडिशियल रिव्यू होगा। So, but wouldn't review be after it's been implemented? हाँ तो हाँ, उससे बाद ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, पर मैंने जो पढ़ा था वो था कि petition was filed in the Supreme Court for the president rule. So how does that play out? I have to read that article. I have to read that article what exactly it is कि भाई मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। हाँ, कि एक petition was filed in the Supreme हाँ तो Court. ठीक है ना, पिटीशन तो कोई भी फाइल कर सकता है कि भैया मतलब देखो यहाँ पर इतने डिस्टर्बेंसेस हैं, ये है वो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा, सरकार को लगाना चाहिए, गवर्नर को लगाना चाहिए। ये बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक होती है कि भाई कोर्ट में भी केस गया है, कोर्ट बोलेगा अल्टीमेटली किसको, गवर्नर को, कि भाई रिपोर्ट बनाओ तुम उस पर, बताओ क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन कोर्ट भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए इस बात से कि हाँ यहाँ पे वाकई में लगना चाहिए, तो वो कोर्ट बोलेगा गवर्नर को, गवर्नर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट किसको भेजेगा, President. वेरी गुड। आई होप द क्लैरिटी थॉट्स। मेरे को वो लिंक शेयर करना प्लीज, आई वुड रीड इट देन मेक इट क्लैरिफाई कि मैं भी देखूं उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली, क्योंकि दीज डेज आई हैव बीन वेरी बिजी विद कोरोना, यू नो
we were tasked with a humongous task वो there in front of us कि मैं पढ़ नहीं पाया पिछले 1 महीने से. मैं आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग. 1-1.5 महीने से तो स्पेसिफिकली मैं बात बोलूँ आपको, ठीक है. उससे पहले भी ये चल ही रहा है कोरोना के चक्कर में. तो मैं मेरे को वो लिंक जरूर शेयर करना सो दैट आई कैन रीड एंड सी कि उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली. बट ओवरऑल मोटा बात ये है, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है. जुडिशियल रिव्यू अगर होगा तो कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया है कि भैया वो उसको चेक करेंगे, उसको बोलेंगे हाँ भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए. अगर लगा है तो सही है या गलत है वो उसको बताएंगे. मैंने सस्पेंशन और डिसॉल्व वाली बात बोली थी, वो भी बुम्बई केस में आई थी, ठीक है. सस्पेंशन और डिसॉल्व वाली बात बताई थी मैंने, ये बुम्बई केस में ही पता चला था. उससे पहले सब डिसॉल्व हो रहे थे. सरकार ने मतलब सरकार मतलब प्रेसिडेंट ने बोला प्रेसिडेंट रूल मतलब डिसॉल्व हो गई असेंबली. मुंबई केस में आया है कि नहीं, जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं आएगा तब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी, सस्पेंड होगी. ठीक है. तो सर वो मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाना है और जुडिशियल रिव्यू में उनको मतलब मान के चलो उनको ये लगा कि नहीं ये मतलब नहीं लगना चाहिए, तो वो कैंसिल हो सकता है क्या? कैंसिल हो जाता है मैं क्या? वही तो बोल रहा हूँ. हाँ, जब जुडिशियल रिव्यू आ गया तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो सकता है. हो सकता है. ठीक है, पर अब तक ऐसा मेरे हिसाब से कोई केस हुआ नहीं है. ठीक है, आई हैव टू चेक इट, बट मेरे हिसाब से अब तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है. वो हो सकता है, तभी तो जुडिशियल रिव्यू है. जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या आ गया, जुडिशियरी के पास पावर आ गई. अब जुडिशियरी जगह हाँ भाई किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हाँ भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब वो उनके पास में पावर आ गई. ठीक है. आई वॉन्टेड